going so far? Nice. Great. Let me say hi to everyone. Hello, Anamika. Hi, Bhumi. Hi, Hema. Hi, Ramya. Hi, Vandana. Hi, Redmi. No. I'm fine. How are you? कैसे हो आप सब? Um, let us wait for some. I'm fine. Let us wait some more people to join, and then I'll start my talking. Redmi Note 9 Pro Max. I would like to tell you. Let's rename yourself. Okay, I would just love to ask you guys one question. कि आप लोगों को why do you think hairstyle is important? Hairstyle क्यों important है आप लोगों के लिए? Tell me your opinions. I want to know. Guys, it's a very simple question, I think. Okay, why is ma'am makeup तो अधूरा है hairstyle के बिना? Great. Anamika, really impressed. I really like the answer. What about others? Rest are sleeping. See, I will just tell you one thing. Face को look create करता. Yeah, kind of same. Yeah, good answer. Very nice answer, Shraddha. Yes, fine then. Let us start today's session because ज़्यादा रुकेंगे, then it will be late. Why I waited? Because hairstyle looks change, like our face look change. Great. Yes, 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 yes. So the thing is, do you know one thing? Maybe you guys didn't know about this. Hairstyles can also contour your face, to be honest. Okay. If you have broad face, if you have small face, you can just immediately broaden up or immediately make the face look small. You know, according अगर आप face का हिसाब से face shape के हिसाब से अगर आप hair style करते हो, there is a huge difference, huge difference. Okay, and always remember, even if you are doing your makeup flawless, your hair is not good in a good position, in a good way, your makeup will not pop out. It will not look to the point, you know. Because now imagine if I bring a model, there are many girls who look beautiful without makeup also. Okay. But then just see them, they will always maintain एक hairstyle maintain करके रखेंगे. That makes them sleek, beautiful. You understand? So this is very important. हम यही बात को भूल जाते हैं. We always think कि यार छोड़ो, हमने makeup foundation कुछ लगा लिया and now face is flawless, we look flawless. But little do you know that you haven't done your hair. So how can you look flawless? Okay? Dressing, styling, you are here in this platform. Calcutta's team is based on styling and also like the entire get up, not only your face. All right. So basically, if you're doing, agar aap ek acha dress पहन रहे हो, you're wasting so much money
on your dress, and ये ऐसा बात भी नहीं है that you won't waste. It's your choice, you know. We being girls, I know it very well. I can't like underdress like that, you know. Like even if the price doesn't matter, but then you need to look good. That's what is the main point. अगर आप मेकअप कर रहे हो, स्टाइलिंग ड्रेस अच्छी तरह से पहन रहे हो और हेयर को कुछ नहीं बना रहे हो, then you know फीका लगेगा. So guys, remember one thing: to get your hair done, there's few steps, just few steps, and you just take some time, give some time. आप आधे घंटे मेकअप में डाल रहे हो, imagine. So you can just give 20 minutes at least to the hair so that you can look flawless, right? You're not becoming flawless for anyone. I'm very sure in today's world, I especially, if you ask me, I do not dress up for anyone. I dress up for myself. You know, I dress up, I do my makeup for myself, I do my hair for myself. Do it for yourself, guys. अगर आप किसी कोई भी like you're going to a place कि हाँ वहाँ पे कौन से लोग आएंगे, मुझे कौन देखेंगे, but guys, do it for yourself. Why for others, right? So keeping all these points in mind, I am trying to teach you today why would you do stuffing, what kind of curls you can do, what kind of tongs you can use, how much temperature you have to keep. All right. So guys, remember one thing: even if you are, agar aap hairstyle kar rahe ho, right? You're doing some hairstyle, and you can create like curls. You can also achieve by blow dry, also by straightener also. So here we teach you to use the equipments, but today the class is focused on how to use a tong and get your perfect curls. All right. So guys, remember one thing: straightener, dryer, maybe aapko curls milega, but then the definite exact curl that you are looking for, that you see in Instagram or Facebook or any kind of Pinterest, वहां पे वो जो कर्ल्स हो आपको, if you want to achieve, forgive my Hindi please, but then if you don't understand, please let me know and I'll just try my best to just say again. And whoever doesn't understand, यहाँ पे I have my host who is there for me, I hope, and he'll just definitely translate it to you guys in Hindi if my Hindi is not that clear, right? So remember one thing: हम अभी कर्ल्स टोंग से सीखेंगे. एंड रिमेंबर व्हेन यू डू इट टोंग, फर्स्ट ऑफ ऑल, जो टाइम आप स्ट्रेटनर में लगा रहे हो, जो टाइम आप अपने ब्लोअर ड्रायर में लगा रहे हो, टोंग से एटलीस्ट 10 मिनट कम लग सकता है, एंड एग्जैक्ट कर्ल्स आएगा जो लास्टिंग भी ज्यादा देर करेगा. All right. जैसे आप स्ट्रेटनर, इवन यूजिंग अ टोंग आई कैन डू इवन straighten the hair. But remember one thing: the straightener का जो effect आएगा वो tong से इतना नहीं आएगा. And now let's talk about stuffing and everything. I'll just ask you up, basic. I just want to know that how much you guys know. On that basis, I want to give you that information. So just tell me, why do you think we do stuffing? Stuffing क्यों करते हैं? And I want all of you guys to answer, because I'm teaching everyone here, not only 1-2 students. Only Shraddha, Bhumi, and Latashri, I guess. Anamika, you guys are answering. Rest, आप लोग क्या सो रहे हो? चाय पी लीजिए please, जल्दी जल्दी, and be awake, focus. I can see people replying, and yeah, please reply. All right, I just want to know कितना information है regarding tong. Why do you think हमें stuffing करना जरूरी है? Let us see the answers. Yes, Gurpreet also stuffing करते हैं ma'am for more volume. All right, and hairstyle look changes like our face look. No. Yes, Vandana, unmute yourself. Tushar, please help Vandana to get herself unmuted. And she can unmute herself. She can unmute herself. Team hair, we have to do stuff because we can hide stuff and her face look good. Yeah, ज़्यादा volume के लिए और face looking के लिए. No idea. Beginner. Great. Nice. Honest answer. I love it.
हाँ जी वंदना, आप कुछ कह रहे थे? जी मैम, मैं क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश कर रही जी थी। वंदना जी, गुड मॉर्निंग, बोलिए। गुड मॉर्निंग मैम, हाउ आर यू? आई एम फाइन, हाउ आर यू? हाँ, वेरी वेल मैम। ग्रेट। मैम, हम लोग फिलिंग इसलिए करते हैं, बालों को अगर कोई हेयर स्टाइल क्रिएट कर रहे हैं तो वॉल्यूम जो दे रहे हैं उसको सपोर्ट करने के लिए, और ज्यादा देर तक स्टे करे हमारा वॉल्यूम, आई थिंक सो, इसलिए करते हैं फिलिंग, ग्रेट। और थोड़ा मॉडिफिकेशन देने के लिए। ग्रेट, ये ठीक बोला है आप लोग, आपने ऑलरेडी एक्चुअली ये आंसर, Bhumi has answered to this, and also Gurpreet, and also Aisha, you guys have already answered. Do I have Akanksha here today? If anyone is Akanksha over here, I want to know. Yes, great. I am asking you personally, Akanksha, now. You have joined, you have come to this class, hair class. Why do you think hairstyle is important? Hello. Hi, Akanksha. Hi, ma'am. Good morning. I'm audible. Yes, you are audible. So आपको क्यों लगता है that hairstyle is important? Because मैम, अगर हम कोई मेकअप दे रहे हैं किसी को, हाँ, तो अगर हम हेयर स्टाइलिंग ही नहीं करेंगे तो फिर वो लुक पूरा कंप्लीट नहीं हो सकता. yes, That's why I think. all right. So basically, hair, मैंने पहले भी बोल दिया है, the people who have joined now, hair is a very important component for styling. आप जो पहन रहे हो, जो मेकअप लगा रहे हो, जो भी कर रहे हो, हेयर स्टाइल के बिना it's very much empty. आधा अधूरा हो जाता है. कंप्लीट करने के लिए you have to do everything in coordination, and everything on the basis of your face shape, on the basis of your wear dress you're wearing, on the basis of the makeup you're wearing. All right. So guys, keeping this in mind, I've already told you, I have created a PPT for you, a small PPT. So in the PPT, we'll talk about curls, and then we'll talk about stuffing. Guys, as I have asked you questions, till now I have got to know only one answer. Ki, yeah, you guys know कि हम volume के लिए करते हैं, but also we do stuffing for many other reasons. Even जैसे I think Bhumi have answered about that. To give, if your hair is thin, to make it look thicker, and volume and the hairstyle to make it complete, we do use stuffing. Okay, and also अगर आपको कुछ भी, sometimes अगर आपका hair short है, there are many people over here जिनका hair short है due to many other personal reasons. उनको maybe they love short hair, maybe they the hair damage हो चुका होगा, that's why they have cut their hair short. So on that basis, you can also put stuffing and make the hair look very big. All right. Stuffing बहुत different ways से हो सकता है. Stuffing, you can also do stuffing with using your own hair, guys, if your hair volume is too much. Okay. So I'll just share this PPT with you guys, and please just try to focus. I would recommend everyone over here ask me questions, because why I am here, guys, for you guys, right? आप लोगों के लिए हूं मैं इधर. So if you do not ask me questions, if you hesitate, अगर आप अपने पास ही रखते हो कि बाद में आप अपने कोऑर्डिनेटर से बोल रहे हो, they are just a link, guys. Over here, artists are sitting to give you answers and to clear your doubts and to teach you guys. So you feel free and ask anything. Okay. Now, guys, let me share the screen. Tushar, can I share my screen? Tushar, can Yes, I share please, my please. screen? Yes, you can. Full volume curls with curling tong. Guys, remember one thing. अगर आप tong use करोगे, the curls will be perfect. Curls का कोई, it will be definite and it will stay for a long time.
I have met people, I have talked with many of my students over here. They have only one complaint कि you know हम जब भी हेयर स्टाइल्स करते हैं वो रहता नहीं है. Guys, अगर आप proper definite products use नहीं करोगे, your hairstyles will not last no matter how much time you're putting into it. ठीक है? So for this, we use first of all holding things, holding spray, holding mousse, all right, and also heat protectant before doing any kind of hairstyles. Guys, remember one thing, there is no such equipment till now. आज तक कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट बना ही नहीं है हेयर के लिए जिससे हेयर डैमेज नहीं होगा. Heat means damaging your hair. Your hair strands, each hair strands have layers in it. ठीक है, लेयर होता है, एक एक हेयर स्ट्रैंड में ही लेयर होता है. तो आप जब भी हीट प्रोवाइड करते हो, चाहे वो ड्रायर हो, चाहे वो कर्लर हो, चाहे वो क्रिम्पर हो, चाहे वो स्ट्रेटनर हो, सेरामिक लेयर आजकल बन चुका है कि सेरामिक लेयर दे देते हैं यू नो इक्विपमेंट्स के ऊपर. स्टिल गाइस, हीट इज हीट आफ्टर ऑल. आपका हेयर डैमेज होगा ही होगा. अगर आप एक पार्लर में जाओगे, दिस इज बिजनेस, वो आप लोग को कभी नहीं बोलेंगे कि हेयर डैमेज होता है, क्योंकि अगर आप उनको वो आपको बोल देंगे, आप नहीं करोगे हेयर स्टाइल, उनका बिजनेस नहीं चलेगा. दिस इज द रीजन वो नहीं बताते हैं. बट नाउ यू गाइज आर गेटिंग ट्रेन्ड एज हेयर ड्रेसर्स, हेयर प्रोफेशनल्स, इवन फॉर योरसेल्फ या किसी और के लिए भी अगर आप सीख रहे हो फॉर फ्रीलांसिंग, यू शुड ऑलवेज रिमेंबर दैट दिस थिंग्स, ये आप अपने माइंड पे रखिए. आई वुड प्रिफर नेवर टेल योर क्लाइंट्स, all right, because that's how you will lose the business. Okay, so but remember one thing, to get your hair properly on point, you need to provide heat. लेकिन everything has a solution. Heat जितना दोगे उसको at least not 100%, 70 to 80% आप बचा सकते हो by the help of a heat protectant. Heat protectant use करोगे. I'll show you now. Look at my screen for just 2 minutes. This is my heat protectant and I really love this heat protectant. I use this. Okay, मैं कुछ भी अगर मैं ड्रायर भी लगा रही हूँ, स्ट्रेटनर लगा रही हूँ, कर्लर लगा रही हूँ, पहले मैं जो भी अगर even if I'm putting a styling mousse to hold my hairstyle, हीट लगाने से पहले I always use this heat protectant. बी ब्लान से है ये और बहुत सारे डिफरेंट ब्रांड्स है. This is my personal favorite. अभी अगर आप लोगों को कुछ कंपनी अच्छा लगता है, लॉरियल अच्छा लगा होगा, like many other brands, उसी के बेसिस में I would tell you always keep a heat protectant in your kit, or for your खुद के हेयर के लिए भी, और also for अगर आप क्लाइंट्स के ऊपर काम कर रहे हो उनके हेयर के लिए भी. All right, so guys, let's talk about styling mousse. You guys अगर मेरे पहले you have attended my classes before, you have known about one thing. I mostly use styling mousse. So I'm going to show it to you. I have already attached a picture. This is my styling mousse that I use, and this is not a personal favorite. ये है Nova Gold का. All right. You might see in the picture मैंने यहाँ पे लगा दिया है. So what does this styling mousse do? Styling mousse helps you to give moisture. First of all, ये याद रखिएगा. Ultimately, it's a styling thing. Styling, the word styling is there. That means what? To do any kind. अगर आप curls बना रहे हो, you're doing any kind of pin curls, your waviness, or you are doing crimps in your hair. Styling mousse helps. It is such a formula. It helps the hair कि आप जैसे भी रखो वैसे ही hair रह जाता है. All right. So we use styling mousse. बहुत लोगों को स्टाइलिंग मूस से सेटिस्फेक्शन नहीं आता है. मेनी पीपल आई हैव वर्कड ऑन स्पेशली ऑन ब्राइड्स. वो लोग बोलते हैं स्टाइलिंग मूस लगा दोगे लेकिन कभी अगर खुल गया तो. सो फॉर दोस पीपल आप अपने किट में रखोगे होल्डिंग स्प्रे. मैं होल्डिंग स्प्रे यूज करती हूँ स्कॉर्सकॉफ का. ये है टफ. ओके, एंड गाइस रिमेंबर वन थिंग, होल्डिंग स्प्रे में भी द होल्डिंग कैपेसिटी होता है फ्रॉम 1
to 5 and every time जब भी आप पैकेजिंग देखोगे always see the packaging नीचे की तरफ you will see here mega strong 5 लिखा है so ये इतना लिमिट तक होल्ड कर सकता है हेयर मोस्ट स्ट्रॉन्ग है इससे भी ज्यादा हो सकता है ऑलराइट बिकॉज जितना टेक्नोलॉजी एडवांस होगा उतना ही प्रोडक्ट्स निकलेगा एंड यू नो मोर एडवांस सो टिल नाउ आई लव टू यूज नंबर स्ट्रॉन्ग और यही होल्ड देता है यू डू नॉट हैव टू वरी आफ्टर दिस ये इट्स एन अमेजिंग होल्डर दिस इज फॉर दोज पीपल जिनको लाइक बहुत टाइम के लिए चाहिए फॉर इमेजिन एक ब्राइड को स्पेशली इंडियन वेडिंग्स में तो पूरी रात चलती है शादियां है ना सो यू हैव टू गिव द ब्राइड सच ए हेयर स्टाइल कि वो पूरा दिन रहे पूरा रात भर रहे या पूरा दिन अगर दिन का रिसेप्शन है तो उनके लिए यू विल बी स्प्रेइंग दिस होल्डिंग स्प्रे आफ्टर यू डू द हेयर स्टाइल ऑलराइट सो ये सब बेसिक है फॉर एनी काइंड ऑफ हेयर स्टाइल ऑलराइट तो इसको आपको हमेशा हमेशा ध्यान में रखना पड़ेगा ऑलराइट सो गाइस लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड हम आज बात करेंगे अबाउट टोंग्स सो मुझे ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा आता है कि हमें अपने किट में पर्सनल यूज या बाहर के यूज के लिए कौन सा टोंग कितना साइज का टोंग रखना चाहिए I would recommend you कि 28 mm वाला टोन रख लीजिए दिस इज परफेक्ट फॉर एनी काइंड ऑफ हेयर स्टाइल अगर आपको और टाइनी कर्ल्स चाहिए देन यू हैव टू कीप अ मोर स्लिमर टोंग बट वो ज्यादा इतना यूज नहीं होता है बिकॉज मोस्ट ऑफ द हेयर स्टाइल आप जो भी करोगे द हेयर स्टाइल्स आर मोस्टली डन विद द 28 mm वाला टोंग ऑलराइट सो ये बात आई एम रिपीटिंग अगेन 28 mm. If you want more, 22 mm रख सकते हो. All right, I'll show you mine. Over here is my tongue. This is 28 mm. And I use, this is a professional वाला use के लिए है and ये अपने खुद के hair पे लिए भी use कर सकते हो. मैं use करती हूँ Iconic का और क्यों use करती हूँ Iconic guys? अभी ये question भी आएगा मैम बहुत सारे brands है Philips का भी है. So the thing is Iconic में एक जितना भी Iconic का products machines है tools है वहां पे एक ceramic coating होता है in all the Iconic products. So what happened? Hair इतना damage नहीं होता. You understand? Hair इतना damage नहीं होता है. ये आपको मैं guarantee दे सकती हूँ. Okay? Because बहुत सारे brands आ चुका है. I have used from many Chinese products also. बहुत सारा है. Amazon में आता है. Only 300-400 में ही आ जाता है. Guys, always remember one thing. Styling जरूरी है. लेकिन प्रोटेक्शन भी जरूरी है आपका हेयर का अगर आपका हेयर प्रोटेक्टेड नहीं है 1 घंटे का स्टाइलिंग के लिए आप अपने पूरे लाइफ का जो हेयर बना हुआ है जो गॉड गिफ्ट है यू कैन ruin इट है ना सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर हेयर इन ऑल वे पॉसिबल सो फॉर ऑल दैट देयर इज अ थिंग कॉल्ड यू हैव टू लुक कि आप टूल्स जो यूज कर रहे हो वहां पे कोटिंग कैसा आता है व्हाट आर द प्रॉपर्टीज All right. So उसी के basis पे you just choose your tongue. Now, after choosing the tongue, what the next step comes is how much temperature आपको रखना पड़ेगा to give a perfect curl whole पे. For that, the temperature needed यहाँ पे आप देख सकते हो. This is a यहाँ पे measurement आ जाता है. I'll show you. मैं जब practically करूँगी. And you can see यहाँ पे plus and minus. Plus से होता है temperature increase, minus से होता है temperature decrease. All right. So the maximum I would tell you जब भी आप hair styling कर रहे हो, especially on your clients, खुद के hair पे भी तो ज्यादा ध्यान देना चाहिए guys. Okay. So अगर आप clients के ऊपर भी कर रहे हो, I would tell you always keep in 180. और 190 ठीक है 220 230 तक भी आता है but guys you guys are learning beginners all right do not take this risk और temperature को 120 in 180 में ही रख के कीजिए
अगर उससे भी कम, मे बी टाइम ज्यादा लग सकता है कर्ल्स फॉर्म होने में, बट रिमेंबर वन थिंग, हेयर प्रोटेक्ट हो रहा है। ऑलराइट, सो गाइज रिमेंबर, यू आर ए हेयर ड्रेसर। आप खुद ही सोचिए, अगर आपका किसी ने हेयर स्टाइल कर लिया, आप उस दिन प्रेज करोगे, वाओ आई हैव ब्यूटीफुल हेयर स्टाइल। नेक्स्ट डे अगर हेयर ड्राई हो गया है, डैमेज हो गया है, आप इमीडिएटली हेयर ड्रेसर को ब्लेम करते हो कि उन्होंने जो प्रोडक्ट्स यूज किया है वो अच्छा नहीं है ना? सो गाइज, अगर आप अभी उसी पोजीशन में हो कि आप सीख रहे हो, तो गाइज यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि किसी को आप चांस ना दो कि कोई बोल सके आपको आके कि आपने मेरा हेयर डैमेज किया है। ऑलराइट, सो फोकस ऑन दिस पॉइंट्स। तो अपना जस्ट रिमेंबर वन थिंग, जो भी हेयर स्टाइल कर रहे हो, जो भी होल्डिंग कर रहे हो, यूज द प्रॉपर प्रोडक्ट्स सो दैट आपके पास कंप्लेंट्स ना आए गाइस। उसी रीजन से always you have to keep focus about these reasons especially. Now let's see, first of all guys, for doing any kind of hairstyle, I always tell you guys, जिसने भी attend नहीं किया है मेरे classes पहले, you remember जब भी आप शाइस्ता के साथ classes attend करते हो, you always have to section the hair. Hair sectioning is very important to get a perfect layered hairstyle, to get a perfect way. क्योंकि आपने एक चीज ऑब्जर्व किया होगा, पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं बता रही हूँ, जब भी हम पहले हेयर स्ट्रेटनिंग घर में करते थे, जब पहले हेयर स्ट्रेटनिंग निकलता था, वी यूज्ड टू डू सेक्शन नहीं करके। आपने एक चीज ऑब्जर्व किया होगा, आगे की तरफ स्ट्रेट होता था, पीछे की तरफ कर्ल्स, अच्छी तरह से स्ट्रेट नहीं बनता था। सो टू स्टे अवे फ्रॉम दोस काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स गाइस, सेक्शनिंग करने के लिए अभी स्टार्ट कर लीजिए, स्टार्ट सेक्शनिंग योर हेयर। ऑलराइट, एंड अकॉर्डिंग टू दैट यू विल सी कितना ह्यूज डिफरेंस आ रहा है आपके हेयर ड्रेस में, हेयर स्टाइल्स में। ऑलराइट, सो गाइस इस पॉइंट्स को प्लीज ट्राई टू फोकस, ऑलराइट, एंड keep this in mind because these are very important points that a hairdresser should not write down but keep in their brain all the time. All right, this को अभी आप you are ऐसे सोच लीजिए कि मैं hairdresser बनने जा रही हूँ, मुझे ये points याद रखना ही पड़ेगा, खुद के लिए भी, या अगर आप किसी और को ट्रेन कर रहे हो, किसी को करा रहे हो, किसी के ऊपर कर रहे हो, you have to remember these points. Now guys, कैसे कैसे कर्ल्स बन सकता है, यू कैन सी, मैंने यहाँ पे पिक्चर्स लगा दिया है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ कर्ल्स अकॉर्डिंग टू योर चॉइस। कर्ल्स बना के इफ यू ओपन इट, द कर्ल्स विल लुक लाइक दिस, थिक, घने, अगर आपको जैसा भी चाहिए, अकॉर्डिंग टू अकॉर्डिंग टू द टोंग साइज। ये जो टोंग का साइज होता है, इस साइज के ऊपर आपका कर्ल्स डिपेंड होता है। यहाँ पे जो कर्ल्स बनेगा 28 mm में, ये हाईएस्ट हेयर स्टाइल्स में यूज होता है। ऑलराइट, इसीलिए मैं ये यूज करती हूँ। अगर आपको लगता है कि ऐसे पिन कॉइन कर्ल्स चाहिए, देन यू हैव टू गेट द थिनेस्ट टोंग। ऑलराइट, आई थिंक इट इज 16 और आई थिंक इट्स 16 आई गेस। ओके, यू कैन यूज दैट एंड ट्रस्ट मी गाइस, इट्स नॉट वर्थ इट टू वेस्ट सो मच मनी, वो बहुत रेयरली यूज होता है। Alright, so जो ज्यादा यूज होता है, keep that in your kit, तब आपका भी फायदा होगा, मनी भी सेव होगा, and it's worth it. Now guys, let's talk about stuffing. So आज का हम तो कर्ल्स कर लेंगे, लेकिन मेन पॉइंट है why is stuffing important, stuffing क्यों जरूरी है, किसको करना चाहिए। Guys, stuffing उन लोगों को करना चाहिए जिनको ऐसा हेयर स्टाइल चाहिए जहां पे मोर वॉल्यूम चाहिए, मोर डेफिनेशन चाहिए। कभी कभी बहुत सारे लोगों का हेयर बहुत लॉन्ग होता है, थिक होता है, उनको भी स्टफिंग चाहिए, लेकिन हम स्टफिंग बैक कोम्बिंग टेक्निक से भी कर सकते हैं। ऑलराइट, अगर आपके पास कुछ नहीं है, जैसे कि एक्स्ट्रा एक्सटेंशंस या डोनट्स या फिर स्टफिंग मटेरियल जैसे मेरे पास, मैं आपको दिखाऊंगी, देन डू बैक कोम्बिंग,
बैक कोम्बिंग से आपका हेयर में वॉल्यूम आ जाएगा एंड स्टफिंग भी हो जाता है। बैक कोम्बिंग के लिए गाइस अभी हमें क्या यूज करना पड़ेगा? बैक कोम्बिंग के लिए वी हैव टू यूज अ टीजिंग ब्रश। लेट मी शो इट टू यू गाइस। ओवर हियर देख रहे हो शू पॉलिश ब्रश की तरह दिखता है बट डोंट गेट मिस्टेकन, यूज अ बैक कोम्बिंग दिस टीजिंग ब्रश। मार्केट में बहुत कम ही में आता है, आई थिंक 100-150 में यहाँ मिल जाता है आपको ये, ठीक है। तो आपके हिसाब से, आपके ब्रांड के हिसाब से जस्ट बाय अ बैक कोम्ब आई मीन टीजिंग ब्रश एंड आई विल गारंटी बहुत ही एफिशिएंट होता है बिकॉज ये इजीली आपके हेयर को नीचे की तरफ ले जाता है, ज्यादा क्वांटिटी पे नहीं, और आप जब हेयर को खोलते हो बाद में वो इजीली खोल भी जाता है बिकॉज जितना हेयर चाहिए बैक कोम्बिंग में उतना ही आता है। ऑलराइट, अभी यहाँ पे नॉट एवरीवन हैज द सेम चॉइस, बहुत लोगों को डिफरेंट डिफरेंट चीजें पसंद है। पर्सनली इफ यू आस्क मी, मुझे बैक कोम्बिंग पसंद नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज मेरा रूट्स बहुत ही पतला है और मेरा बहुत ही ज्यादा हेयर फॉल इजीली हो जाता है ग्रिप की वजह से, तो मैं ये रिस्क नहीं लेती। तो मैं क्या करती हूँ, आई यूज दिस आर स्टफिंग, ठीक है। स्टफिंग अभी आप किसी भी स्टेशनरी शॉप जहां पे आप मेकअप का सामान, हेयर का सामान खरीदते हो वहां पे मिल जाएगा, नहीं तो www.amazon.com इज योर बेस्ट सप्लाई, आपके डोर स्टेप डिलीवरी होगा। ऑलराइट, वहां पे आप जस्ट सर्च की स्टफिंग, हेयर स्टफिंग, इमीडिएटली आपको ऑप्शंस मिल जाएगा। इसका बहुत डिफरेंट डिफरेंट साइजेस आता है, आप खुद भी बना सकते हो इसको घर में। ऑलराइट, कैसे, इसका भी मैं क्लास दूंगी, DIY हैक्स। ऑलराइट, लेकिन इट्स बेटर कि आप खरीद लो, बहुत ही कम में मिलता है, इमरजेंसी में आप बना सकते हो। ऑलराइट, नाउ गाइस, नॉट ओनली विद दिस, हम स्टफिंग कर सकते हैं विद डोनट्स ऑल्सो। ऑलराइट, डोनट्स आता है डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में गाइस, व्हाइट में भी आता है, ब्राउन में भी आता है, ब्लैक में भी आता है। तो मेरा हेयर इज ब्लैक, फॉर माई ओन हेयर मैं यूज करती हूँ ब्लैक वन। ओके, जिनका अभी बहुत सारे लोग, आजकल ट्रेंड है कि लोगों को ब्लीच करना पसंद है अपने हेयर को, तो मोस्ट ऑफ द पीपल आर ब्लॉन्ड। ब्लॉन्ड के लिए आप यूज कीजिए समथिंग इन व्हाइट। आई थिंक आई हैव इट इन माय किट, लेट मी सी। Yes, you guys are lucky. I use this for blonde hair. And guys, remember, according to your hairstyle, you have different sizes. Let me show. This is very big and this is very small. Jinka hair may, though this is a very common hairstyle nowadays, they put into two sides. ये भी hairstyle बन चुका है लड़कियों के लिए. All right. तो उनके हेयर में मे बी आपका हेयर में डेंसिटी नहीं है, लेकिन आपको बंच चाहिए, ऊपर में बंच चाहिए, आप उसी के बेसिस, हेयर क्वांटिटी के बेसिस आप छोटा वाला डोनट यूज करोगे, ठीक है। जिनका हेयर ब्राउन है उसमें आप ब्लैक भी यूज कर सकते हो, ब्राउन भी यूज कर सकते हो, ब्लॉन्ड भी यूज कर सकते हो। बट गाइस ऑलवेज रिमेंबर, ऐसा नहीं है कि किसी का हेयर ब्लॉन्ड है तो आप ब्लैक नहीं यूज कर सकते, यूज कर सकते हो, लेकिन स्टफिंग दिखना नहीं चाहिए गाइस। इसको आप हमेशा ध्यान में रखिए, जब भी आप स्टफिंग करते हो लोगों को पता नहीं चलना चाहिए कि आपने स्टफिंग किया है, देन ओनली यू आर ए प्रोफेशनल, और एल्स हर कोई हेयर स्टाइल कर सकता है। ऑलराइट, सो गाइस, नॉट ओनली विद दिस, एक्सटेंशंस आप रख सकते हो, हेयर एक्सटेंशंस मिल जाता है, किसी भी शॉप में मिल जाता है, 100 का ही आता है, 98 रुपीज में आता है। यू कैन जस्ट ट्विस्ट एंड टर्न, बट वो बहुत ज्यादा मेसी होता है, आई वुड नॉट प्रिफर। ऐसे समथिंग क्लोज आइटम्स गिव यू दैट प्रॉपर एग्जैक्ट बंस काइंड ऑफ फुलर लुक। ऑलराइट, सो गाइस, आज हम सीखेंगे रिगार्डिंग स्टफिंग एंड आई विल शो यू सम डेफिनेट हेयर स्टाइल जिससे आप you can at least carry and it looks really really nice. All right guys, PPT यहाँ पे ही खत्म होता है एंड अभी हम प्रैक्टिकल में शिफ्ट करेंगे।
सो टिल नाउ अभी तक किसी को कुछ क्वेश्चंस है पूछ लीजिए, बिकॉज प्रैक्टिकल के समय आई वुड नॉट लुक इन द क्वेश्चंस बिकॉज मुझे खड़ा होके आई हैव टू डू ऑन माय डमी. सो एनी क्वेश्चंस जस्ट मैम आस्क मेरा इट राइट क्वेश्चन नाउ. है. यस. मैम मेरे बाल बहुत हेयर फॉल की वजह से बहुत ज्यादा थिन हो चुके हैं, तो मुझे एक्सटेंशंस यूज करने पड़ते हैं, बट जब मैं ऑर्डर करती हूँ तो फिर वो मतलब पर्टिकुलर मिलता नहीं है. किस ब्रांड का यूज करना चाहिए? ह्यूमन हेयर में भी ट्राई किया कि वो भी लें, 2-3 करके लगाएं बालों में, लेकिन वो बात नहीं आती. वो मतलब मैसी सा हो जाता है. मैसी सा हो जाता है. सो इफ यू डोंट माइंड लेट मी आस्क यू समथिंग. आपने कितना पे किया था फॉर ह्यूमन हेयर वन? मैंने 1200-1500 तक भी लिए हुए हैं. सो ह्यूमन हेयर एक्चुअली ये कौन है एक्चुअली? कैन यू, वंदना जी ये वंदना आपको? मैम. जी जी. जी वंदना जी, ये बात आपको आई एम टेलिंग यू वेरी क्लियरली, डमी, एक्सटेंशंस, विग्स, ओके, अगर इफ यू आर बाइंग ऑफ ह्यूमन हेयर, ठीक है, आजकल तो एक्सटेंशंस और विग्स जिनका हेयर ऑलरेडी अच्छा भी है वो भी पहनते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को दे आर लेजी, कर्ल्स करना पसंद नहीं होता है या स्ट्रेट करना पसंद नहीं होता है, तो वो विग कैप पहन के दे जस्ट वेयर अ विग. बट गाइज रिमेंबर, विग 2 तरह का आता है, एक्सटेंशंस 2 तरह का आता है, डमीज 2 तरह का आता है, सिंथेटिक, ह्यूमन 3 तरह का, सॉरी 3, ह्यूमन, ह्यूमन हेयर, सिंथेटिक हेयर एंड मिक्स हेयर. मिक्स हेयर इज मेड ऑफ ह्यूमन हेयर एंड सिंथेटिक हेयर, दोनों मिक्स करके मिक्स हेयर बनाते हैं. गाइज रिमेंबर वन थिंग, ह्यूमन हेयर में भी आपको गूगल में दिखा रहा होगा कि ह्यूमन हेयर है, कॉस्ट बहुत कम है. ह्यूमन हेयर एक्सटेंशंस, विग्स, डमीज, इट स्टार्ट्स फ्रॉम 7-8,000. ठीक है, because human hair is kind of costly and human hair का lasting ज्यादा है, लुक ज्यादा है. आप कैसे डिफरेंशिएट करोगे? ह्यूमन हेयर में इतना शाइन नहीं होता है एक्सटेंशंस में, लेकिन आप जब मिक्स या फिर आप सिंथेटिक का खरीद रहे हो, वहां पे एक शाइन आएगा, आर्टिफिशियल शाइन, और बहुत ही ज्यादा सिल्की होगा. बट गाइज वो सिल्की सिर्फ 10 दिनों के लिए ही है, उसके बाद इट बिकम्स लाइक प्लास्टिक. ऑलराइट वंदना जी, क्लियर हो गया? जी. आपका आपने जो पहले पहले खरीदा था वो बहुत शाइनी था शायद, है ना? बहुत शाइनी था. वो सिंथेटिक है वंदना जी. के ह्यूमन हेयर बोल के दिया गया था. हाँ, आपको यू गॉट फूल्ड. अभी आप लोग को डिफरेंशिएट पता चल चुका है ना? ये बात आपको कैसे आप खुद से डिफरेंशिएट कर सकते हो यही है, ह्यूमन हेयर में इतना शाइन नहीं होता है, विग्स, डमीज एंड एक्सटेंशंस, ओके. लेकिन अगर आप सिंथेटिक या मिक्स यूज कर रहे हो, बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्रा शाइन और बहुत ओवर सिल्की होता है व्हेन यू फर्स्टली परचेज इट. ठीक है, नाउ कैन आई सी द क्वेश्चन? 1 सेकेंड. मैम डमी पर बन जाता है, रियल हेयर पे दिक्कत आती है बहुत. नहीं गुरप्रीत, आप प्रैक्टिस करो, ठीक है. आई थिंक आपने पहले अपने नानी पे किया था, मुझे भी वीडियो भेजा था, बहुत अच्छा किया था वहां पे आपने. आई रियली लाइक योर हेयर स्टाइल्स, बहुत अच्छा किया. एंड जितना प्रैक्टिस करोगे इतना फ्लो आएगा. मैम मेरे पास आइकॉनिक का 22 mm का टोंग है, उससे कर्ल्स में प्रॉब्लम होगा क्या? नहीं होता. आई यूज इट पर्सनली ऑल्सो. ठीक है guys, let's not be late and let's do some kind of exciting hairstyle today. And any kind of questions, feel free and just ask me immediately. मैं आप लोग को immediately answers दे दूंगी. All right, so मैम आपने जो इससे पहले वाली क्लास में स्ट्रेटनर से कर्ल करने के लिए बताए थे ना, तो मैं जैसे जैसे आपने करे सेम वैसे वैसे मैं करी थी, बट वो बाल कर्ल ना होके स्ट्रेट हो जाए थे. मैं डमी पे कर रही थी और खुद पे भी आपका करी. डमी मे बी सिंथेटिक है इसलिए होल नहीं हो रहा है. नहीं मैम, मैंने दूसरे मंगवाए हैं. वो हाँ. 7,000 के मैंने मंगवाए अमेजोन से.
तो वो उसमें भी नहीं हो रहा, और मैं खुद के हेयर पे भी करी थी तो वो स्ट्रेट हो जा रहे थे, मतलब कर्ल ऐसे घूम नहीं रहा था जैसे मुझे कर्लर से। ट्विस्टिंग टेक्निक बताओ, कैसे ट्विस्टिंग किया था? आपने बोला था ना ऐसे थंब को नीचे रख के फिर एक बार, हाँ, फिर ट्विस्ट करके, फिर एक बार और ऊपर की तरफ, फिर थंब ऊपर चले जाएंगे, फिर उसको नीचे धीरे धीरे खींचना होता है, तो वो। होल्डिंग कुछ यूज किया था? हाँ, मैंने होल्डिंग स्प्रे यूज करे थे, उसके बावजूद वो स्ट्रेट हो रहे हैं बाल, कर्ल होल्डिंग नहीं स्प्रे हो। कब यूज किया था? पहले? हाँ, पहले वो करने से पहले। प्रॉब्लम ये है, होल्डिंग स्प्रे जब लगा देते हो, उसके ऊपर जब हीट लगा देते हो, स्ट्रेट, अल्टीमेटली स्ट्रेट का गोल क्या होता है? सीधा, है ना? हम्म। तो पहले आप कर्ल्स करो, ट्विस्ट करो इमीडिएटली, कर्ल्स करना कर लिया, फिर ट्विस्ट करो, ट्विस्ट करके उसके बाद होल्डिंग स्प्रे डालो। ट्विस्ट हाथ से करना है, वो हटा के आपको एक हाथ। बार ऐसे हाथ से इसको घुमाना होगा। हाँ, तो मैं वो, जैसे मैं वो करके स्ट्रेटनर से वो निकल गए पूरे बाल, तो वो स्ट्रेट थे, फिर मैं उसको, आप जैसे हाथ से ऐसे घुमाए थे, मैं आपके बाल घूम जा रहे थे, बट मेरे स्ट्रेट ही रह रहे थे, ये प्रॉब्लम हो रहा था। कुछ तो प्रॉब्लम, कुछ गलत आप कर रहे हो, नहीं तो नहीं हो सकता वो। बिकॉज बिकॉज मैं आपको यही बोल रही हूँ, हेयर स्टाइलिंग अगर आप स्ट्रेटनर से करोगे, होल रहता है बिकॉज वहां पे हीट होता है। मे बी आप बहुत फास्ट जा रहे थे, बहुत, देखिए, आप टोंग नहीं यूज कर रहे हो, आप एक स्ट्रेटनर यूज कर रहे हो, जो एक्चुअली में प्रैक्टिकली टू थिंक हम टोंग कर्ल्स नहीं करते, लेकिन वी बीइंग एन हेयर ड्रेसर हमें पता होना चाहिए, इसलिए मैंने सिखा दिया, ठीक है? लेकिन हीट प्रोवाइड जो करते हो वो एटलीस्ट आपको थोड़ा रखना पड़ेगा। जनरली जब आप स्ट्रेट करते हो, एक दो स्ट्राइक्स में हो जाता है, बट जब आप कर्ल्स करोगे थोड़ा धीरे से कीजिए, सो दैट हीट प्रोवाइड हो, होल्ड हो, ठीक है? ओके मैम, Who मतलब was एक। this? Was it Nanshi? Yes, Nanshi. आप आज whatever I told you right now, okay? Try to do it. Try to do it right now when I'm doing with my tongue. मैं जब tongue से करूंगी, थोड़ा टाइम ले लेके कीजिए, okay? अगर नहीं होता है, then हम इसके बारे में solution over the uh, live session only we'll मैं discuss about it. मैं स्ट्रेटनर से करूं? आप एक साइड में स्ट्रेटनर से करो, एक साइड में कर्लर से करो, ओके। ठीक है? हाँ मैम। फिर तो उसके बाद मुझे भी पता चलेगा क्यों नहीं हो रहा है, एंड मैंने आपको बताया है थोड़ा होल पे थोड़ा टाइम लेके कीजिए, थोड़ा टाइम, थोड़ा उसमें स्ट्रेटनर को धीरे 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 नीचे आइए, ठीक है? ओके मैम। हीट प्रोवाइड होने दीजिए, एंड प्लीज यूज अ हीट प्रोटेक्टेंट, ठीक है? ओके भूमि, व्हाट क्वेश्चन डू यू हैव रेज्ड योर हैंड? Yes, ma'am. I am Bhumi. हाय, हाय, गुड मॉर्निंग भूमि। Ma'am, good morning, ma'am. Ma'am, जब भी सिल्की बाल हो, यानी कि बहुत जिनके बहुत सिल्की बाल होते हैं, like my hair, यस, फिर ज्यादा कर्ल स्टे नहीं करता, जल्दी से निकल जाता है होल्डिंग स्प्रे लगाने के बाद, तो उसके लिए आप मुझे कोई टेक्निक दे सकते हो? मैं आपको यही करूँ बोलूंगी, आज मैं दिखाऊंगी, मैं मूव यूज करती हूँ। यस, सो मैंने ये भी किया था मैम, यूज मूव किया भी था? किया था। हाँ, फिर भी वो 2-3 घंटे के बाद कर्ल्स ना छूट जाते हैं। ओके, और एक बार मैं आपको आज अभी everyone should listen to this. So last time I was doing curls and एक प्रोफेशनल हेयर ड्रेसर ने यहाँ पे मुझे क्वेश्चन पूछा कि मैम मेरे क्लाइंट से कंप्लेन्स आता है कि मेरा कर्ल्स रहता नहीं है। तो मैं आपको एक प्रैक्टिकल अभी बताऊंगी। We girls, हम जो लड़कियां, we have a habit of touching our face and hair a lot. हम बहुत ही ऐसे, मैं इसलिए बांध के रखती नहीं, तो मैं भी क्लास में भी मैं ऐसे ऐसे करती रहती हूँ। इट्स अ नेचुरल टेंडेंसी, ठीक है? बट डू यू नो, बॉडी रिलीजेस वाटर, स्वेट, ठीक है? आपने एक चीज ऑब्जर्व किया होगा, आप जब स्ट्रेट करते हो, बाल जब तक नहीं धोते हो स्ट्रेट रहता है। धोने का मतलब क्या होता है? पानी डाल रहे हो। सो जब आप
बार बार, हम एक बार में नहीं होगा, हम बार बार हेयर को ऐसे पकड़ते रहते हैं, ऐसे रहते हैं, ऐसे पकड़ते रहते हैं। लड़कों का ये इतना प्रॉब्लम नहीं होता है एक्चुअली, वो लोग नहीं पकड़ते, और छोटा हेयर भी होता है। सो व्हाट हैपेंस, हैंड का जितना स्वेट है वो हेयर में चला जाता है, और जो कर्ल्स अब बना रहे हो वो लूज हो जाता है, धीरे 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 लूज हो जाता है। कितना तक ये आपको हेल्प करेगा? अल्टीमेटली ये भी गिव अप कर देता है। सो वन थिंग आई कैन रिकमेंड, वंस यू डू योर कर्ल्स और स्ट्रेट, हाथ को कंट्रोल, ओके, दैट्स द ओनली सोल्यूशन मैं आपको बता सकती हूँ। बिकॉज इफ यू आर यूजिंग अ होल्डिंग स्प्रे एंड अ होल्डिंग मूस, स्टाइलिंग मूस, देयर इज नो वे कि हेयर खोल सकता है। ब्राइड्स का क्यों एक्चुअली नहीं खोलता है? उनको इतना चांस ही नहीं मिलता है ना, घूंघट होता है। अगर मिलता भी है तो आगेगा, लेकिन हम फिक्सिंग करके उसको प्लास्टिक की तरह चिपका देते हैं। लेकिन if you're doing in a normal hairstyle, I understand daily up, you can't use a holding spray. तो only one recommendation, hair को इतना ज्यादा टच मत कीजिए, एक्टिवेट मत कीजिए। ओके मैम, ये जो क्लाइंट की तरफ से मुझे क्वेश्चंस आ रहे थे कि Yes. आपने कर्ल्स किया है, ये 2-3 घंटे में निकल गया है, हाँ, ऐसा। नहीं नहीं, आप ये उनको बोलिए, मैं आपको घर नहीं जा सकती हूँ, लेकिन आपको एक ही बोल सकती हूँ मैं, आप अपनी जब भी यस, मैं कर्ल्स करके देती हूँ उसको रेस्पेक्ट करके टच मत कीजिए, यस, एग्जैक्टली। ओके? बिकॉज ओके, आई थैंक यू हैव मैम। फेस्ड इट माई सेल्फ ऑल्सो। मैं सोचती हूँ, मैं इतना किया, क्यों कुछ नहीं हो रहा है, क्यों खोल जाता है? द रीजन इज, मैं बहुत बार पकड़ती रहती थी, ऐसे पकड़े पकड़े पकड़े, देन आई ऑल्सो गूगल्ड, आई थॉट अबाउट इट कि यही होता है। Please send your, I want to share my work. Okay, Gurpreet, my Insta ID is makeup by Shasta, और ये लास्ट में ये बता दिया जाएगा आप सब लोगों को, and do not Yes, worry. don't worry, Okay, guys. I'll be putting the whole Insta handle of Cult Cutter and Saista. So don't worry, you will get the. so guys, अभी just give me 2 minutes, मैं अपना डमी लाती हूँ and सेटअप कर लेती हूँ कैमरा एंड ऑल। यू गाइस, अगर आप मेरे साथ प्रैक्टिस कर रहे हो, ट्राई टू प्रैक्टिस। अगर डमी नहीं है, ये बहाना मत दीजिए, बिकॉज आपके बहन या मम्मी या मदर इन लॉ या पड़ोसी या बेस्ट फ्रेंड कोई तो होगा, उनके ऊपर टच, जस्ट ट्राई टू प्रैक्टिस, एंड टिल दैट टाइम लेट मी मेक माई सेटअप रेडी। ऑलराइट, जस्ट गिव मी 1 minute guys।
थोड़ा zoom, a little bit more zoom. Great. Okay, guys, I hope this dummy is human hair. As always, I use only human hair because mixed hair में इतना आता नहीं है, so इसलिए evenly पहले मैं अपने इसका जो डिटेंगल्स है, टेंगल्स है, इसको मैं डिटेंगल करूंगी. Akanksha, if you have any question, let me know. Now, guys, always remember about one thing. Great. Yeah. So always remember कि always I start my any kind of hair dressing, any kind of hairstyles by sectioning the hair. Always section the hair first and उसके बाद just do your work. Okay. So मिडिल पार्टीशन करने के लिए आई एम शोइंग यू अ टेक्निक. ये मैं हमेशा हर एक क्लास में बोलती हूँ. ये जो आईब्राउज है और नोज एरिया है उसका बिल्कुल बीच में अपना कंघी रखिए, अपना कोम रखिए एंड देन गो राइट लाइक दिस इन द बिटवीन, लाइक फ्रॉम द नोज. इसका ग्रिप ऐसे रख लीजिए, ओके, नोज के ऊपर रख के, एंड ये जो है आपका मिडिल पार्टीशन है. ठीक है. सो इनका मिडिल पार्टीशन ये है. मैंने नीचे की तरफ, एंड व्हाई डू आई यूज, आई ऑलवेज यूज रेड टेल कोम फॉर सेक्शनिंग. ओके, सेक्शनिंग रेड टेल का यही प्रॉपर्टी होता है एंड इट्स वेरी चीप. इट कम्स इन अराउंड आई थिंक 150 और 200 इन द मार्केट. ऐसे आता है. ये मेटेलिक है, बेंडेबल नहीं है. ओके, एंड दिस इज वेरी नाइस बिकॉज बहुत ही पतला होता है और हेयर फॉल नहीं होता है, हेयर के बिल्कुल बीचों बीच चला जाता है. दिस इज द रीजन मैं हमेशा बोलती हूँ अपने हेयर स्टाइलिंग टिप में, definitely always keep a red tail comb. Now from between नीचे से ले जाके ये हम लोग का फर्स्ट पार्ट सेक्शनिंग है. 2 पार्ट्स में डिवाइड कीजिए. डिवाइड करके गाइस आई यूज माय फेवरेट क्लचेस. ये है सेक्शनिंग क्लिप, इसको हम बोलते हैं. ऑलराइट, एंड इसको होल पे रख लीजिए. ये आपका फर्स्ट सेक्शनिंग हो गया. उसके बाद वी विल बी मूविंग टू द नेक्स्ट वन. साइड है, ये साइड फेस का. ओके, ये सबका सेम होता है, सब लड़कियों का या लड़के का. एवरीवन हैव द सेम थिंग. सो ऑलवेज रिमेंबर अपना जो कोम है, ये हम लोग का कोम. ये आपको मैं इजी टेक्निक बता रही हूँ. जनरली हेयर ड्रेसर्स बोल देंगे कि आपको ऐसे ही करके यू कैन डू द सेक्शनिंग, बट एक्यूरेट आप कैसे कर सकते हो. दिस आर माय ओन ट्रिक्स. कोम को ऐसे पकड़िए, ऊपर की तरफ जाइए और स्कैल्प के साथ थोड़ा बेंड होके नीचे की तरफ ले जाइए एंड एग्जैक्टली कान के पीछे होता है. एंड जितना हेयर चाहिए उतनी. अभी मेरा डमी का डेंसिटी कम है इसलिए स्कैल्प दिख रहा है, बट अगर आप ह्यूमन हेयर पे करोगे आपको ये पता चल जाएगा डिफरेंस. ऑलराइट, फिर उसके बाद फर्स्ट पार्ट को सेक्शन करके बस हो गया. इसको मैं यूज करूंगी क्लच सेक्शनिंग क्लिप होल पे एंड पीछे की पार्ट होल पे.
Do the same thing on your side. Okay, same तरीका कीजिए, इसको खोल लीजिए. And guys, just give me 1 minute. I'll just fix my camera because I think बहुत ज्यादा लाइटिंग आ रहा है. मैं ठीक कर लेती हूँ. Just give me 1 minute. Hey guys, I'm back. And अभी मैंने अभी तक कुछ नहीं किया. इस पे मैं बेंड हेड को थोड़ा बेंड कर लेती हूँ so that आप लोग थोड़ा ज्यादा देख सकते हो. डमी खोल के 1 second guys. Okay. अभी guys ये वाला पार्ट सबसे इजी पार्ट होगा. ये लास्ट पार्ट सेक्शनिंग है. ये जो लाइन ऑलरेडी इस पार्ट पे जो लाइन बन गया था, अभी इस पार्ट पे उसी लाइन को फॉलो करते हुए अपने कोम को टेढ़ा करके स्केल्प के साथ ऐसे लाके इमीडिएटली कान के बिल्कुल पीछे तक सेक्शनिंग हो जाता है. अभी मेरा डमी में बीच बीच में हेयर नहीं है, इसलिए आपको लग रहा होगा कि अच्छी तरह से नहीं हुआ, बट यू नो यहाँ पे शी इज गंजी. बट देन इफ यू डू इन अ ह्यूमन हेयर you can feel the difference. बिल्कुल कानों के पीछे आ जाता है. You can see. Okay. Now इसको हम क्लच सेक्शनिंग क्लिप यूज करके होल पे रख देंगे. And this is the last part. ग्रेट. अभी आप देख सकते हो मेरा हेयर 4 पार्ट्स में डिवाइड हो गया ऑलरेडी. ओके, ये सेक्शनिंग मैंने कर लिया. स्टार्टिंग विथ माय बैक साइड, मैं हमेशा पीछे के सेक्शन खोल के करती हूँ. आई स्टार्ट विथ दिस. ओके, ये वाला पार्ट खोल लीजिए एंड मेक श्योर कि आपने जो सेक्शनिंग किया है वो वाला हेयर आगे ना आए. सो मैं क्या करती हूँ, मैं ओवर ही क्लिप्स लगा देती हूँ आगे की तरफ भी, सो दैट हेयर ना आए और मेरा हेयर स्टाइलिंग में कुछ भी डेविएशन ना आए. अभी गाइस टोंग को हीट में रख लीजिए. ओके, मैंने टोंग को ऑलरेडी हीट में रख लिया है. ये है आइकॉनिक का 28 mm और मैंने टेम्परेचर लगाया है अभी 180. 185 तक जा सकती हूं मैं, लेकिन मैंने 180 रखा है. ओके गाइस, बी केयरफुल. हाथ जल सकता है बिकॉज ये देख रहे हो आई हैव जस्ट बर्न माई ओन हेयर हैंड वंस. ओके, बिकॉज इसलिए टाइम लेके कीजिए. मैं बहुत जल्दी जल्दी कर रही थी. आई डिडंट हैव टाइम एंड डूइंग माई ओन हेयर आई जस्ट बर्न माई हैंड. So the reason was I didn't have that patience and I was like, no, I just have to do fast. जल्दी जल्दी करना है मुझे. But guys, remember, heat के साथ do not play. Personal experience के साथ बोल रही हूँ मैं. Try to take some time. Do not burn your hand because बहुत गंदी तरह से जलता है. अगर जलता भी है तो. All right. So now. सेक्शन खोल के अभी रेक्टल कोम फिर से ले लीजिए एंड पीछे से अगर आपको मेजरमेंट चाहिए, ये कंघी का आप विड्थ देख रहे हो इतना, आप इतना इतना पार्ट्स ले सकते हो.
और एल्स अगर आपको ये फॉलो नहीं करना, टेक इट अकॉर्डिंग टू आपको जितना कंफर्टेबल लगे, या फिर आप टोंग का साइज के हिसाब से उंगली से नाप लीजिए, पहले इतना साइज है उस इतना उतना सेक्शन लेके आप टोंग का कर्ल्स करोगे। ओके, मैं ओपनली ही करती हूँ, मैं इतना मेजर, बिकॉज एक्सपीरियंस से आपका भी फ्लो आ जाएगा। इसको ऊपर की तरफ क्लिप कीजिए, अगर टेंगल्स है जड़ों को खोल लीजिए। नाउ मेरा फेवरेट थिंग इन हेयर स्टाइलिंग, हीट प्रोटेक्टेंट लगाऊंगी मैं पहले, बिकॉज मेरा डमी ह्यूमन हेयर है, ह्यूमन हेयर को प्रोटेक्ट करना जरूरी है। मेरा ये वाला पार्ट ज्यादा ड्राई है, सो ट्राई टू फोकस। हीट प्रोटेक्टेंट स्प्रे, हीट प्रोटेक्टेंट स्प्रे, नाम है बी ब्लंट, बी ब्लंट का है। ठीक है, मैं स्टाइलिंग मूस यूज करूंगी अभी, ठीक है, ज्यादा नहीं, जितना हो सके कम, इवनली स्प्रेड कीजिए। 1 सेकेंड गाइस, मेरा स्वेटर आगे की तरफ आ रहा है, सो लगा लिया इवनली। अभी स्ट्रेटनर लीजिए, मैं इस ये जो है इसके बीच में नहीं डालती हूँ, मैं आपको बता रही हूँ मैं क्या करती हूँ। ऐसे टोंग को स्लैंडिंग नीचे की तरफ आप कर सकते हो, नीचे की तरफ फेस करते हुए, एंड ये जो धुआं निकल रहा है गाइस, ये जो आप मैंने पहले प्रोडक्ट्स लगाया है, हीट प्रोटेक्टेंट और मूस में वाटर क्वांटिटी होता है, वही इवापोरेट हो रहा है, आपका हेयर जल नहीं रहा है। अगर आपका क्लाइंट्स भी आपको पूछे कि इतना धुआं कहाँ से निकल रहा है, द रीजन इज आप जो जितना भी आपने प्रोडक्ट्स लगाया है वो इवापोरेट हो रहा है। ये लगाने के बाद, हाँ जी, ये लगाने के बाद यू कैन काउंट 1 2 इनसाइड योर माउथ, मुंह के अंदर ही 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, उसी को लेके नाउ ओपन योर कर्ल्स। ये हो गया हम लोग का फर्स्ट कर्ल। अकॉर्डिंग टू द हेयर डेंसिटी आप कर्ल्स का वॉल्यूम करोगे, ठीक है। सो व्हाट आई विल डू, अभी मैं आपको 2 पार्ट्स करके दिखाऊंगी। इवनली हेयर को सेक्शनिंग कोम, रेड टेल कोम से निकाल लीजिए। गुरप्रीत आप प्लीज अनम्यूट करके पूछ लीजिए, मैंने इससे पहले ही बोला कि मुझे आई कांट कीप ऑन लुकिंग द स्क्रीन, और तुषार कैन यू प्लीज रीड डाउन द क्वेश्चंस फॉर मी। एक्चुअली मैम कई बार देखा है कि वर्टिकल रख के भी करते हैं कई टॉन। यस, बट तो उसमें अभी क्या मैं जो difference आता यहाँ है? पे स्टफिंग वफिंग करूंगी उसी हेयर स्टाइल के बेसिस में करने मैंने किया है, इसलिए मैंने बोला है आप कर सकते हो, ये कर सकते हो, इसलिए मैंने बोला है। अच्छा मैं आपको अभी वर्टिकली भी दिखाऊंगी, ठीक है। मैम, ये कर्ल्स में डिफरेंस आएगा कि? हाँ जी, यस डिफरेंस आता है। नाउ यू विल सी वर्टिकल वन। ये वर्टिकली किया आपने देखा, I didn't keep my straightener like this. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसके बाद open your curls. Now one more technique I'll show you.
स्लैंटिंग वे में लीजिए या फिर वर्टिकल जैसे भी, सॉरी वर्टिकल या स्लैंटिंग जैसे भी लीजिए आप, हॉरिजॉन्टली। टोंग को यूज करके यू कैन मेक अ ट्विस्ट हियर, यहाँ पे एक ट्विस्ट दे सकते हो, इससे भी कर्ल्स डिफरेंट आएगा। इससे भी कर्ल्स डिफरेंट आएगा। खोल लीजिए, ये हो गया। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कर्ल्स, यहाँ पे अभी 3 तरह का कर्ल्स है। एक है जहाँ पे मैंने हेयर को फ्लैट करके किया, एक है जहाँ पे मैंने हेयर को ट्विस्ट करके किया, एक है जो नॉर्मली किया मैंने। ठीक है, ये वाला क्या करता है, ये नीचे की तरफ फ्लो ही होता है, इतना ज्यादा वॉल्यूम नहीं देता है। ऑलराइट, बट जिनका भी थिक हेयर है, ये सब कर्ल्स आप करके अगर खोल दोगे, वेवीनेस बहुत ही सुंदर से आता है। ओके, नाउ I'll show you, wait now. Open the hair section से make it into 2 parts or else इसमें आप दे दीजिए। हीट प्रोटेक्टर लगा लिया मैंने। इवनली मूस को स्प्रेड कर लीजिए। मुझे जो हेयर स्टाइल चाहिए उसमें ट्विस्टिंग विल बी बेस्ट, सो मैं ट्विस्टिंग करके आज पूरा हेयर करूंगी, बिकॉज मैं कर्ल्स को लास्ट में खोल देती हूँ, बाउंसी ज्यादा लगता है और वेवीनेस भी बहुत ज्यादा आता है। एंड आजकल लड़कियों को मोर देन कर्ल्स वेवी हेयर ज्यादा पसंद है। हेयर का जब आप फ्लो करते हो, सो दैट आपका हेयर हाथ जल ना जाए, सो फ्लो थोड़ा फास्ट रखिएगा कर्ल ट्विस्टिंग में। आप देखते जाइए, यू नो, और प्रैक्टिस ऑल्सो। आप देख रहे हो सेक्शनिंग का फायदा। आई एम डूइंग इवनली बन रहा है कर्ल्स। जो यहाँ पे ऑलरेडी हेयर ड्रेसर्स है, प्रोफेशनली आप लोग काम कर रहे हो, आप लोगों को ये भी पता होगा, जब आप हेयर ब्लो ड्राई भी करते हो सेक्शन करके, तब इजीली सेक्शनिंग ड्राई होता है। सो सेक्शनिंग हैज लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ बेनिफिट्स, इसलिए हम सेक्शनिंग
हर एक हेयर स्टाइल में मैं प्रीफर करती हूँ। सेम स्टेप्स, हीट प्रोटेक्टेंट और मूस लगा लीजिए। Sorry for interrupting you, ma'am, but Yes, you can ask questions when I'm doing it. It's okay. अभी जो आपने सेकंड प्रोडक्ट लगाया है, Yes. तो वो मतलब हम क्यों यूज करते हैं, उसका कोई खास रीजन? पहले नाम क्या लिखा है? मूस के पहले क्या है? आप बोलिए तो। जी मैम। मूस के पहले कौन सा वर्ड है? हीट प्रोटेक्टर। मूस के पहले हीट नहीं, प्रोटेक्टर, लेकिन मैं मूस के बाद। स्टाइलिंग लिखा है, राइट? राइट। तो व्हेन यू डू एनीथिंग, आप कर्ल्स कर रहे हो, आप स्ट्रेटनिंग कर रहे हो, आप क्रिम्स कर रहे हो, यू आर यूजिंग अ हीट। या तो हीट कभी कभी हेयर में ड्राइनेस भी दे देता है, और अगर आप कुछ प्रोडक्ट नहीं यूज कर रहे हो। नो मैम, आई एम आस्किंग अबाउट सेकंड प्रोडक्ट। Sorry, the second product is styling mousse. Yes, yes. That is the second product, darling. Ma'am, this hair mousse. Hair mousse. Yes. First, I use this. This is my first product. Ma'am, second product की बात Second is hair styling mousse. Yeah, ma'am. What is the question? Repeat again. मैम, जो हम हेयर म्यूस यूज कर रहे हैं वो हम क्यों यूज करते हैं, उसके पीछे मतलब क्या रीजन है? Just now I said styling purpose. So that's what do not interrupt. I am trying to tell it to you. Try to understand. जब आप styling करते हो, whenever you are holding something, you're putting heat, right? आप heat डाल रहे हो. So heat डालने के बाद hair वैसे रहेगा, but not for much time. Okay. ठीक है? जब when you use a style, and also whenever you apply heat, moisture hair से थोड़ा बहुत चला भी जाता है. Okay? Styling mousse, in fact, it gives you the moisture also in your hair, and also it helps to hold the hairstyle. Okay? Any other question? No, ma'am. Thank you. Okay. Yeah. Any other guys? Keep on asking like this in between only. Just keep on asking in between. Direct questions, guys. I want everyone to be clear after this class, because later I'll be asking you किसका क्या function है. अगर जो कोई भी अभी शर्मा के या फिर hesitate करके नहीं पूछ रहे हैं, this is not my problem, because later I'm gonna ask you guys, because हम भी time invest कर रहे हैं and I want my students also to learn. ठीक है? Hello, ma'am. Hi. Yes, ma'am, sorry I interrupt you. It's okay, Ma'am, ask me. Ma'am, can you please show some curls pulling technique? Curls pulling technique. I didn't get you, darling. Okay, ma'am. Can you repeat the question? मैम, ये जो आपने कर्ल्स बनाया है उसको हम पुल्स करते हैं ना, साइड बाय साइड से, तो कैन यू प्लीज शो द टेक्निक? नो नॉट लाइक दिस, लाइक द ओपन करते हैं, यू मीन? नो ओपन नॉट, जैसे कि आपने कर्ल्स बनाए उसको ऊपर से थोड़ा सा ऐसे हम पुल करते हैं, फिर नीचे से पुल करते हैं, दिस टाइम. ऊपर से नीचे से? मतलब यस, जैसे कि आपने वहां से थोड़ा सा पुल किया, फिर मैं उसके आपको नीचे एक से. टेक्निक बोलती हूँ. आपको फुल वॉल्यूम हैवीनेस चाहिए, वेवीनेस करना है ना हेयर को? यस. आपको मैं बताती हूँ. या फिर कर्ल को ले लीजिए, एक बार नीचे की तरफ कोम कीजिए, इसको छोड़ दीजिए, इट बिकम्स वेवी.
ओके मैम। एंड मैम जस्ट वो जो पुल करते वो कर्ल्स के बाद ऐसे से वन वन वो स्ट्रेट। हम हेयर स्टाइलिंग में करते हैं डार्लिंग, नॉट फॉर दिस थिंग। वो हम करते हैं जब आप हेयर स्टाइल्स बनाओगे रशियन वे में, ऐसे ऐसे थोड़ा यस थोड़ा यस, आई नो दैट वहां से कई कई बार मैंने देखा है वो लोग यहाँ से भी जो कर्ल्स बना टेक्निक्स रहा ये है। सब इंस्टाग्राम में नया नया खुद से ही बनाया है ओके वो लोग। वो ओके, लोग इसकी कोई बेसिक टेक्निक्स नो, नहीं है ना देयर मैम? इज नो सच बेसिक टेक्निक। ये सब ओके लोग हेयर ड्रेसर खुद का ही स्ट्रेटजी यूज करते हैं। ओके ओके, ठीक है। दैट्स नॉट ओके मैम। मैम वो अच्छा लगता है, आप एक बार बता देंगे तो वो सही पूछ रही, मुझे भी वो जानना है। वो फुल करके ना वो वॉल्यूम सा आ जाता है उसमें, वो अच्छा लगता है। वॉल्यूम आप एक बार बता देखिए, देंगे। वॉल्यूम आप वो लोग नाउ मे बी द प्रोडक्ट्स दैट मैं यूज कर रही हूँ, मैं अभी ओपन करूंगी, स्टफिंग करूंगी, ऑलरेडी वॉल्यूम आ जाएगा। उससे पहले अगर मैं और दूंगी, हेयर इतना बड़ा लगने लगेगा। यू अंडरस्टैंड? ईदर वन, ईदर ये करना होगा, ईदर ये करना होगा। ठीक है, नॉट लाइक सब एक साथ आप करोगे। जितना करोगे ओके सबका लिमिट होता है। अगर इफ यू ओवरलैप थिंग्स, एक के ऊपर एक सब कर देते हो, जिसके ऊपर हेयर स्टाइल भी कर रहे हो वो भी सिर दर्द करने लगेगा। वो बोलेंगे कि नेक्स्ट टाइम से मुझे आना ही नहीं है, मुझे सिर दर्द करता है इनके पास। मैं हेयर स्टाइल बन गया तब भी सिर दर्द करता है। बिकॉज आप कितना टेक्निक्स कर रहे हो, स्टफिंग भी डाल रहे हो, आप पुल आउट भी कर रहे हो, बहुत ही बड़ा लगेगा। और अगर आपका फेस बाई चांस, अगर आपका क्लाइंट का फेस छोटा है और इतना आप कर रहे हो, फेस का हुलिया ही बदल जाएगा। सो बी केयरफुल। ठीक है। मैम, Okay. सेम टेक्निक एक ही क्लाइंट के नहीं कर रहे हैं, मतलब बट हम सीखना चाहते हैं ये दूसरे अलग क्लाइंट के और एक लिए। दिन इसमें इंक्लूड करूंगी, बिकॉज आई डू नॉट वांट टू मिक्स। अभी आज हम स्टाफिंग के बारे में टॉपिक के ऊपर ही डिस्कस करेंगे। ओके, बिकॉज अगर इफ यू गो आउट ऑफ टॉपिक, अदर स्टूडेंट्स जो भी है इस टॉपिक के लिए बहुत सारे लोग आए हैं, राइट? सो इट्स नॉट फेयर फॉर देम ऑल्सो। मैं इस टॉपिक में एक क्लास रख दूंगी। ठीक है। ओके, ओके, थैंक यू। नाउ इवनली इसको स्प्रेड कीजिए। Guys, Calcutta has sessions for different topics. आप उसी बेसिस में क्लास अटेंड कीजिए, आपको आ जाएगा। आप एक दिन में यू कैन रीड द एंटायर बुक। ठीक है, यू हैव टू बी कंसिस्टेंट। आपको क्लास अटेंड करना पड़ेगा। बहुत सारे मैंने स्टूडेंट्स को देखा है, दे आर नॉट अटेंटिव एट ऑल। मैं बोलती रहती हूँ आंसर्स, फिर से सेम क्वेश्चन मुझे आ जाता है। एंड इवन स्टूडेंट टीचर्स के ऊपर भी यू नो वी गेट अ वेरी बैड इंप्रेशन कि स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट ही नहीं है। सो ट्राई टू पुट सम इंटरेस्ट, ओके, एंड ट्राई टू फोकस whenever you are asking question. This shows that you want to know. ठीक है, लेकिन try to focus in the classes. Now doing the same technique. खोलिए, इसमें हम 3 पार्ट्स में करेंगे।
मैं इस पे 2 पार्ट्स में करके I want to open, so already volume आ जाएगा, full volume, because हमें stuffing भी करना होगा. मैम Yes. अगर हम अपर साइड सेक्शन कर्ल कर रहे हैं तो हमें ये डाउन साइड रखना पड़ेगा. See, upper side section, it depends upon the hairstyle you're doing. ओके. Now, some buns, okay, they need fluffiness. So, we prefer ki, 1 second, let me open this for you guys. Okay, now, yeah, I was saying, see, now upper side section, lower side section, बहुत सारे hairstyles ऐसे होता है, you know, on top you need the volume, you know, so on that basis, you will just do the entire curls. And also guys, मैंने आपको ये बताना भूल गई, now I will show you a different way of doing the curls, okay, generally हम curls हमेशा, we always do from the roots, okay, inwards, outwards. Now guys, remember one thing, 2 parts hota hai, inwards and outwards. If you do inwards curls, ये especially broad face में बहुत अच्छा होता है, because वो hairstyle अंदर की तरफ होता है, inwards की तरफ, okay, whenever you're doing inwards. If you're doing outwards, hair ऐसा जाता है, so even if your hair face is tiny, तब अच्छा लगेगा, लेकिन अगर आपका face broad है, okay, if it's square, rectangle, or round face, then I will always prefer कि आप inward curl कीजिए, do not do outward curls, okay? और कर्ल्स गाइस, आप ऊपर की तरफ अगर नहीं करना चाहते हो, आप नीचे भी कर सकते हो. So I'll show you how to do that. हेयर के सेक्शन को निकाल लीजिए. Now I'll show you one more way. Every hairdresser has their own way. I'm showing you all the ways possible. Okay.
ये अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा आपके लिए कन्वीनियंट होगा। सो गाइस 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया हेयर को। कॉम्ब को ले लीजिए, इधर से आप इसको घुसा सकते हो, अंदर की तरफ ले जाइए, नीचे की तरफ आई मीन। देन उसके बाद जस्ट कर्ल इट लाइक दिस। और अगर आपको ऊपर तक नहीं जाना, सिर्फ नीचे की तरफ कर्ल्स रखना है, आप ऐसे रख के थोड़ा देर रख सकते हो, ग्रिप भी रहता है। एंड नीचे की तरफ फुल वॉल्यूम नहीं होता है, दोस्तों आई एम नॉट शोइंग यू अकॉर्डिंग आउट ऑफ द टॉपिक, but why not guys, you should have some little bit more information, so मैं ये भी सिखा रही हूँ। नाउ धीरे से इसको खोल लीजिए। सो ये हो जाता है सिर्फ नीचे की तरफ, आप देख रहे हो ऊपर की तरफ कुछ नहीं हुआ, ओनली दिस स्ट्रैंड, ओनली दिस स्ट्रैंड, लुक एट इट। ऊपर की तरफ मैंने छोड़ दिया। अभी इसमें भी करके दिखा देती हूँ आपको फिर से, बिल्कुल ऐसे करके नीचे की तरफ, फिर राउंड वाइज, जरा ऊपर ये वाला पार्ट छोड़ दीजिए, ऐसे कर्ल्स हो जाएंगे आपका। इसको खोल सकते हो। खोलने के बाद सिर्फ नीचे की तरफ कर्ल्स हो गया, दैट्स इट। ऊपर में इट्स स्ट्रेट, बट दिस डजंट विल नॉट गिव यू वॉल्यूम। आपका जो वॉल्यूम चाहिए ना, फुल वॉल्यूम, जो टॉपिक है आज, उस टॉपिक से ये थोड़ा रिलेवेंट नहीं है, बट दिस विल नॉट गिव यू वॉल्यूम, ये मैं आपको गारंटी दे सकती हूँ। दे सकता है, लेकिन इफ अगर आपका हेयर का डेंसिटी बहुत ही ज्यादा थिक है तो। नाउ हीट प्रोटेक्टेड फेस स्प्रे कर लीजिए। मूस लगा सकते हो, नहीं भी लगा सकते हो। मुझे लग रहा है कि विदाउट मूस ये हो रहा है, सो मैं इतना नहीं यूज कर रही हूँ, लेकिन क्लाइंट्स पे यूज कीजिएगा, नहीं तो आपका कंप्लेन नहीं आना चाहिए, क्लाइंट से कंप्लेन नहीं आना चाहिए गाइस। सो इसलिए सेफ्टी मेजर्स, अभी जो मैं पहले वाला कर रही हूँ वॉल्यूम वाला कर सी फिर से कर ली। आप ऐसे भी रख सकते हो, इफ यू वांट इट फ्लोइंग डाउन, नीचे की तरफ फ्लो इजीली, और टॉन्ग से इजीली निकल भी जाता है, और ऐसे भी रख सकते हो। Those both of them will give you different kind of curls. मैं एक्चुअली नीचे की तरफ क्यों रखती हूँ गाइस, मैं आपको आज बोलूंगी। मैं जब ऐसे स्ट्रेट रखती हूँ ना, तो ऊपर में एक लेयर बैठ जाता है, ठीक है, मतलब ऐसे ऊपर की साइड। लेकिन आप जब ऐसे नीचे की तरफ करोगे तो फ्लॉलेस कर जाता है ऊपर, स्पेशली रूट्स के पार्ट। जनरली लोग नीचे की तरफ ही ध्यान देते हैं, बट आई फोकस फ्रॉम टॉप टू बॉटम, बिकॉज जब कर्ल्स मुझे लगता है कि हाँ ऑलरेडी हीट प्रोवाइड कर ही रहे हैं, तो व्हाई नॉट परफेक्टली फ्लॉलेस।
इसको हम ओपन कर देंगे सो दैट वॉल्यूम आ जाए। अभी पहले कर लीजिए। होल्डिंग में मुझे नहीं लगाना बिकॉज आज मैं डमी के ऊपर कर रही हूँ, लेकिन आप होल्डिंग अगर किसी क्लाइंट के ऊपर कर रहे हो, आफ्टर डूइंग इट यू कैन एक्चुअली होल्ड। थोड़ा लूज क्लोज करते हैं इसमें। लास्ट पार्ट है, मैं आगे की तरफ आज नहीं करूंगी बिकॉज मुझे आप लोगों को स्टफिंग भी सिखाना है। सो अभी मैं ये खोल दूंगी कर्ल्स को। यू कैन सी ओके, ये ओपन कर्ल्स ऑलरेडी बन चुका है। नाउ गाइस लेट्स मूव टू स्टफिंग एंड हेयर स्टाइलिंग। ज्यादा टाइम भी नहीं है हमारे पास, सो लेट अस मेक दिस क्विक। रेड टेल कोम ले लीजिए। मैम जी फ्रंट कर्ल अगर हम करेंगे तो वो सेम टेक्निक होगी ना जैसे हमने बैक सेम, नो अदर टेक्निक इन्वॉल्व, सेम टेक्निक, ठीक है? ओके मैम। ओके नाउ सी, मैं ऐसे बेंड वाइज थोड़ा बेंटली लेती हूँ सेक्शन। ओके मेरा इवन डमी का हेयर इवन नहीं है, सो थोड़ा प्रॉब्लम आ जाता है। इसको रख के टेक केयर दिस सेक्शन ट्रायंगल फॉर्म में होना चाहिए, आगे की तरफ ट्रायंगल फॉर्म में ऐसे। वेट, ऐसे जो पहला वाला पार्ट है सेक्शन से आप ट्रायंगल फॉर्म में ले लीजिए थोड़ा हेयर, और पीछे में थोड़ा हेयर रहना चाहिए। नाउ गाइस इसको हम दोनों को आगे की तरफ क्लिप कर देंगे, इसको बिल्कुल मत छूइए अभी। सो ये वाला जो पीछे वाला पार्ट था फर्स्ट दो सेक्शन से, इसको ले लीजिए। एंड मैं क्या करती हूँ, कोम्बिंग टेक्निक, कोम लेके पीछे पे टीजिंग कोम से इसको पीछे की तरफ कोम करती हूँ और इसको ऐसे रख दीजिए।
सेम इस तरफ भी उतना ही पार्ट लेके नाउ पीछे की तरफ फोल्ड कीजिए, ज्यादा हेड मत लीजिए। ऑलराइट, नाउ डन। अभी ये जो आगे का हेयर था इसको उंगली के बीच से रख के आपका बैक कोम नहीं दिखना चाहिए गाइस, इसका थोड़ा ध्यान रखिएगा। इसको पहले एक बार हम क्लीन करके रख दीजिए, फिर ये वाला पार्ट में सेम कीजिए। इसको हम बाद में देखेंगे, ये वाला पार्ट। बैक से नहीं, ऐसे मैंने होल्ड करके रखा है, कुछ भी नहीं लगाया अभी तक, इसलिए नहीं दिखाया मैंने। आपने जो बैक कोम्बिंग किया है वो नहीं दिखना चाहिए गाइस, इसमें थोड़ा फोकस कीजिए आगे की साइड में। ये ह्यूमन हेयर में ज्यादा अच्छी तरह से आता है, तो आप लोग जब ह्यूमन हेयर में प्रैक्टिस करोगे आपको पता चल जाएगा। अभी बीच का ऐसे ही पार्टीशन रहने दीजिए, बिकॉज ये दोनों साइड से उठा रहेगा। ये मेहंदी में फ्लावर है, फ्लावर की स्टफिंग बोलते हैं ये, पहले बटरफ्लाई फ्लावर, जो भी बोलो। फिर उसके बाद बॉबी पिन ले लीजिए, इसको हम सेट करना पड़ेगा। ये वाला ऑलमोस्ट हो गया है। ओके, सो बॉबी पिन ले लीजिए ऐसे, छोटा या बड़ा डजंट मैटर, और हेयर को टक करके बिल्कुल ऐसे रख लीजिए। और इस वाले पार्ट से अभी यहां से स्प्रेड करके सेम मिडिल में ये गैप होना चाहिए, बॉबी पिन से इसको हम टक करके रख लेंगे। और ये ब्राइड्स में, मेहंदी लुक्स में स्पेशली बहुत आजकल ब्राइड डिमांड करते हैं। मेहंदी, हल्दी, इस वाले हेयर स्टाइल्स में आप ये कर सकते हो। और यहां से ये निकल गया है थोड़ा सा, यहाँ पे क्लिप लगा लीजिए। ये वाले पार्ट को अभी हम पीछे की तरफ ले जाके ऐसे बीच में 2 लेयर्स होना चाहिए, बिल्कुल ऐसे। ओके, नाउ इसको होल्ड करने के लिए हम थोड़ा दूर से फोल्डिंग स्प्रे डालेंगे। बीच का मिडिल पार्टीशन होना चाहिए, जरूरी है, सो कोई सिंदूर भी लगाए तो इट लुक्स गुड। यस आयशा, नाउ take your hair, tug it. हेलो Yes. मैम, और फ्लावर ज्वेलरी डालने से या दुपट्टा ओढ़ने से वो स्टफिंग बैठ नहीं जाएगा क्या? नहीं नहीं, क्योंकि वो फुला फुला सा रहता है ना, अगर फुला फुला सा ही रहेगा, फुला फुला ही, बिकॉज मैंने फोल्डिंग लगा दिया है। हाँ ठीक है। ठीक तो है, फ्लावर
थोड़ा वेट होगा ना, मतलब उसमें थोड़ा वेट ज्यादा रहेगा तो नहीं, वेट ज्यादा ना हो इसीलिए मैंने यहाँ पे डाला है, बैक कोम्बिंग किया है। बैक कोम्बिंग से बिकॉज एक्स्ट्रा कुछ भी प्रोडक्ट नहीं लग रहा है, राइट? सो ओके मैम, हैवीनेस नहीं आता है। ओके मैम, थैंक यू। इसको थोड़ा और हम और क्लिप लगाएंगे बिकॉज मुझे बीच में ये मिडल पार्टीशन चाहिए। ओके, एंड नाउ पीछे की तरफ आप इसको एक पॉलीटेल में टाई कीजिए, थोड़ा ऊपर ले जाके। प्लीज स्टफिंग यूज कीजिए। मैं थोड़ा बड़ा वाला करूंगी, मुझे बन थोड़ा बड़ा वाला चाहिए। यह स्टफिंग को ले लीजिए नीचे की तरफ और हेयर को ऐसे स्प्रेड कर लीजिए इवनली, ठीक है? नाउ धीरे धीरे करके इसको ट्विस्ट करेंगे हम। ट्विस्ट करके ऐसा बन जाता है और होल्डिंग के लिए यूपिन नीचे की तरफ, ये पहला वो यूपिन, बहुत सारा यूपिन लगाना पड़ता है स्टफिंग में बिकॉज स्टफिंग निकल भी सकता है। सो ये हेयर ड्रेसर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि स्टफिंग को अच्छी तरह से लॉक करें। यहाँ से आप धीरे धीरे करके हेयर निकालोगे छोटा छोटा पार्ट्स में, एंड इसको आप थोड़ा मेसी बन की तरह, मैं ये करके दिखाऊंगी। जस्ट गिव मी 2 minutes। मैं स्टफिंग इतना यूज नहीं करती, स्पेशली ब्राइड्स पे मैं उनका हेयर से ही बन बना देती हूँ, शॉर्ट हो या बड़ा हो। गजरा को ले लीजिए। मैं क्या करती हूँ, गजरे को ये वाले हेयर स्टाइल में स्पेशली, लेट मी जस्ट पुट द गजरा, आप लोग देखोगे मैं नीचे की तरफ लगा लेती हूँ ऐसे, ये बहुत ही अच्छा लगता है। एंड ऊपर की तरफ भी लगा सकते हो लेकिन मुझे नीचे की तरफ बहुत पसंद है बिकॉज जब आप घूंघट ओढ़ते हो ऊपर का एरिया ढक जाता है, सो गजरा भी ढक जाता है। सो दैट गजरा दिखे, बन को थोड़ा बड़ा बना के, यू नो, यूपिंस थोड़ा ज्यादा ही लगता है सो दैट आपका हेयर स्टाइल स्टक रहे। यहाँ पे कर्ल्स, एक्चुअली हेयर पे बन बनाने से पहले मैं कर्ल्स नहीं करती, बट आप लोगों के लिए मैंने आज कर दिया। लेकिन मेरा हेयर ड्रेसिंग में जब भी मेरा बुकिंग आता है मैं नहीं करती हूँ कर्ल्स वगैरह, मैं स्ट्रेट हेयर में ही करती हूँ एंड क्लीन करती हूँ कभी कभी। ये मेरा पर्सनल है, डोंट थिंक कि आपको वही करना पड़ेगा। गजरे को होल्ड के रखने के लिए जितना हो सके यूपिन से इसको होल्ड कीजिए, यूपिन से। स्टफिंग वाला बन, ओके, ये निकल रहा है। गजरा थोड़ा बड़ा होना चाहिए
ये डमी गजरा है, सो इट्स स्मॉल, ओके। बहुत ही अच्छा लगता है ऐसा हेयर स्टाइल। वेट, नहीं हो रहा है, ऐसा होता है बिल्कुल। गजरा को थोड़ा बड़ा लीजिए ह्यूमन हेयर में, और स्टफिंग से अगर किसी का हेयर छोटा भी है, थिकनेस कम भी है, तो ये आप देख रहे हो बहुत वॉल्यूमेटिक होता है। और गजरा थोड़ा बड़ा लीजिए, ये बहुत छोटा है, डमी गजरा है, सो उसी के बेसिस पे ऐसे टक कर दीजिए, बहुत ही अच्छा लगता है। एंड आगे की तरफ इट विल बी लाइक दिस। कर्ल्स नहीं करना चाहिए था एक्चुअली गाइस, लेकिन क्लास में कर्ल्स इंपॉर्टेंट है, सो मेरे पास अभी 2 डमी नहीं है, लेकिन सामने से ऐसा लगता है। आपने दीपिका पादुकोण देखा होगा, ये वाला हेयर स्टाइल थोड़ा मेसी बन और थोड़ा मिडिल पार्टीशन, ये बहुत ज्यादा करती है। इसके बीच अगर आप सिंदूर भी लगा लो और कुछ ऐसे मांग टीका भी लगा लो, इट लुक्स रियली नाइस। और अगर आप ये मेहंदी वाले में कर रहे हो, मेहंदी में जनरली आगे की तरफ वो लोग फ्लावर्स लगाते हैं, फ्लावर का आजकल बहुत फ्लावर वाला ज्वेलरी आ चुका है, तो बीच में अगर आप लगा दोगे इट लुक्स रियली रियली नाइस। इससे तो बहुत छोटा ही होगा, सो या। So guys, wait now. Let's do the question and answer again. फिर उसके बाद we have another session. We have to end up this session and just give me 1 minute. Ma'am, I have a question. Yes, Akanksha. मैम, अगर हमने क्लाइंट को बैक कॉम्बिंग करके कोई हेयर स्टाइल दिया है और फिर वो हमसे पूछता है कि आपने बैक कॉम्बिंग तो कर दिया, अब इसे इजीली कैसे रिमूव करें, तो हम उसको क्या बता सकते हैं? हेयर वॉश। हेयर वॉश हाँ जी। डायरेक्ट? Because I would personally tell you, अगर वो आए भी, बैक कोम्बिंग टेक्निक में हेयर फॉल होता है, डजंट मैटर कितना वो है। सिल्की हेयर में थोड़ा टफ होता है बैक कोम्बिंग करने भी, बिकॉज वो होल पे नहीं रहता, तब आपको बहुत सारा होल्डिंग्स पे यूज करना पड़ता है, एंड उससे हेयर ड्राई भी होता है। सो व्हाट यू कैन डू, मैं ये वाला आप लोगों को सिखा दूंगी एक्चुअली। यू कैन यूज ह्यूमन हेयर, सॉरी सिंथेटिक वाला एक हेयर आता है, आपको याद होगा, ऐसे चोटी के नीचे भी ऐसे लगाते हैं, एक मिलता है 50 रुपए या 100 रुपए में ही मिल जाते हैं आजकल। होलसेल के स्टोर में तो यू गेट इन पूरा बल्क में 150 में, नहीं 200 या 300 में 4 या 5 आता है, नॉट 4 या 5, बहुत सारा आता है। तो आप वो अपने किट में रख सकते हो, उससे आप थोड़ा थोड़ा काट काट के यू हैव टू कट इट, और उसके बाद वो अंदर डाल दीजिए, तब वो एटलीस्ट फ्लफी होगा। और होल्डिंग स्प्रे लेके हेयर को ऐसे 2 उंगली के बीच हेयर रखिए, ओके, एंड देन उसको ले जाइए और पतला से ऊपर से लेयर ले जाइए, वो हेयर का स्टफिंग भी ढक जाएगा, एंड यू कैन डू विदाउट डूइंग बैक कोम्बिंग। बट गाइस, बैक कोम्बिंग में आप कोई भी सोल्यूशन नहीं है, हेयर फॉल होगा, यहाँ पे कोई नहीं है कि हेयर फॉल नहीं होगा, बिकॉज आप अल्टीमेटली हेयर को जट बना रहे हो, है ना, यू आर जस्ट क्लॉगिंग हेयर सो दैट वॉल्यूम आ जाए एक के ऊपर एक है। अल्टीमेटली आप उसको लाइक हम जो बोलते हैं ना, पूरा जट लग गया है ऐसे बोलते हैं ना, कि अभी खोलना पड़ेगा, हाथ से हम खोलते हैं, तो वो हाथ से खोल सकते हैं या फिर हेयर वॉश करना पड़ेगा उनको, बिकॉज अल्टीमेटली आप वही कर रहे हो आर्टिफिशियली। नेचुरली होता है हमारा सोने के टाइम, या फिर कंघी ना करो तब होता है, लेकिन द ओनली सोल्यूशन इज यू जस्ट इसको हटा सकते हो थ्रू योर हैंड्स, और फ्लैट कोम से ब्रश कर सकते हो, फ्लैट कोम, डू नॉट यूज अ रोल, ब्लो ड्राई ब्रश ऑल्सो, रेक्टेल कोम भी यूज मत कीजिए, इससे बहुत ज्यादा हेयर फेयर होता है, ओके। मैं डमी का ही हेयर फॉल एग्जाम्पल, तो फ्लैट कोम यूज कीजिए, जैसे कि 1 सेकेंड, आई यूज फ्लैट कोम, मैं अपने खुद के हेयर पे तो फ्लैट कोम से ही ब्रश करती हूँ, ये वाला, इससे हेयर फॉल थोड़ा बहुत कम होता है। तो बैक कोम्बिंग में ये आप खोलने के लिए ये यूज कर सकते हो, एंड हेयर वॉश, नथिंग एल्स। Any more questions? Anamika, Akanksha, is it clear for you? Yeah, ma'am. Yeah. Thank you.
Any more questions, guys? Tushar, take over this thing. Yes, please. Okay. Do we have any questions, guys? I'm pretty much sure Sashta has Hello, ma'am. explained everything, but if there is anything, yes, Rupali. मैम आपने जो ट्रिक्स लिया था ना कर्ल्स करने के लिए वो पतले पतले You're not audible actually. आप फिर से पूछिए question. आपने जब कर्ल्स कर रहे थे तो पतले पतले सिक्स लिया था ना आपने हाँ जी. तो वो अगर थोड़ा सा मोटा मोटा लूं तो कुछ प्रॉब्लम होगा क्या नहीं. तो उसमें कर्ल्स वो जो कर्ल्स दिख रहा था वो पतले पतले थे मुझे जो कर्ल्स होता कि किसी मेरे क्लाइंट है वो बता रही थी कि उसको मोटा मोटा कर्ल्स चाहिए तो मुझे समझ तो में नहीं आप टोंग बड़ा वाला साइज ले लो, 28 है, 30 वाला ले सकते हो, बहुत बड़ा वाला आता है, या फिर मोटा मोटा हेयर सेक्शन लेके यू डू दा, और थोड़ा गैप दे दे के, इतना ट्विस्टिंग में थोड़ा गैप दे दे के रखिए. ओके 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 ठीक है. थैंक यू मैम एनी टाइम टोंग यूज करना पड़ेगा, आई थिंक 30 यूज करना पड़ेगा. ओके मेरे पास तो मैम 22 वो एक ही है उसी से तो करती हूँ 20 से 22 से डालेंगे वो. अभी तो मैंने 28 में ही आपको छोटा लग रहा है कर्ल्स, है ना? हाँ तो हाँ सोचिए 22 में कितना छोटा होगा. ओके ओके मैम एनी थैंक टाइम. यू मैम बट एक्चुअली ये डमी के ऊपर आपको छोटा लग रहा है, लेकिन ह्यूमन हेयर में ये बहुत अच्छा लगता है 28 से. ओके ओके बहुत वेवी बाउंसी हेयर होता है, एंड आजकल तो वेवी बाउंसी सबको चाहिए, लाइक यू नो, अगर कर्ल्स भी करो तो वो लोग बोलते हैं कि ओपन लूज कर दो, खोल दो, ऐसे हाँ बोलते हैं. तो आप 28 ही यूज कीजिए. ओके 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 मैम मैम आपने जो अभी होल्डिंग स्प्रे यूज किया है एक बार उसका नाम शेयर करेंगे प्लीज. हाँ जी, मैंने यूज किया है टाफ्ट का है, स्कॉर्सक्रॉफ का टाफ्ट पावर हेयर स्प्रे. मैम आफ्टर कर्लिंग के बाद हम शाइनिंग स्प्रे यूज करते हैं ना, तो वो शाइनिंग के लिए बस उसी के लिए करते हैं ना और कुछ नहीं इसमें? सिर्फ शाइन के लिए. कभी कभी क्या होता है मेरे हेयर में स्पेशल, मैं बहुत शाइन स्प्रे यूज करती हूँ, बहुत हेयर ड्राई हो जाता है, बिकॉज यू नो हीट से ड्राई होता है तो बहुत गंदा दिखता है, ऐसा लगता है कि फट गया है हेयर, स्प्लिटेंस है. हाँ, दो Flawless छोटे 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 बाल रहे थे वो इसे हाँ, ऊपर दिख रहे होते हैं, तो मतलब उसको नीचे आपको नीचे करने के लिए यू हैव टू यूज अ होल्डिंग स्प्रे. होल्डिंग स्प्रे. ओके मैम, थैंक यू. Perfect. Any more questions, guys? मैम मूव्स थिक हेयर पे यूज करते हैं या ओनली थिन हेयर पे? सॉरी, द क्वेश्चन. मैम मूव्स थिक हेयर पे यूज करते हैं या थिन हेयर पे? हर एक हेयर में, हर एक हेयर में होल्डिंग के लिए ना, हर एक हेयर में यूज कर सकते हैं. Anytime, Anamika. So guys, let me say bye to everyone. Bye Akanksha, Anamika, Aisha, Bhumi, Dhanashri, Gurpreet, Nanshi, Nidhi, Yes, Rahul, Anamika, you have any question? Ramya, Rupali, Vandana. Yes. So guys, this is the end of today's session. I hope आपको थोड़ा बहुत idea हो गया होगा. And bye guys. Yes, thank you so much for attending the session, and keep attending. Calcutta is coming up with new sessions and new techniques and new looks. जहाँ पे different makeup artists and different specialized hairdressers, and everyone will be teaching you, and you will be certified, guys. Certification is just a simple thing, but the main thing is about how you learn, how much you learn. This is Calcutta's responsibility to teach you all much as possible. I love you guys so much, and thank you Calcutta's team for supporting. I love you guys. Take care until next time. Bye. Okay guys, I hope this session आप सभी को अच्छा लगा हो. Any feedback, any suggestions, you guys are most welcome. I'm putting the Insta handles of both the pages of Calcutta and Sayashta. You can go and check out our pages.
Okay, guys, I hope that's really great, Anamika. I'm really glad कि आपको पसंद आई और आपको समझ में आया. Perfect, guys. Before you leave, don't forget to sign up on www.cultura.com. Follow us on Instagram. Follow Saishta on Instagram. Both the Insta handles have been mentioned in the chat box. And please just keep practicing, take classes, and thank you so much for joining us, guys. We will see you in the next session. Till then, bye bye and take care.